friends, and this is our first chapter. Light, reflection and refraction is most important chapter in board, and we will study it carefully, so please concentrate. I'm here with the PDF of light, so you can take screenshots wherever and whenever you require it. So let's begin. So here the first two lines I have underlined that ray nature has been used to explain the phenomena of reflection and refraction. Why? Because there are two nature of light, particle nature and wave nature. The ray nature has been used because reflection and refraction occurs through a ray. I can explain it with the help of a brush. So see, let's consider this as a source. From source many rays arise. अब रे क्या है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, बट इट गोज अनएंडिंगली, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. अब मान लो कोई भी रे आ रही है अनएंडिंगली, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है. अब ऑब्जेक्ट की सरफेस अगर पॉलिश्ड होगी तो या तो रिफ्लेक्शन होगा, और अगर नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन होगा. तो हम दोनों चीजें रे नेचर से एकदम अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए हम रे नेचर यूज करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए. नाउ लेट्स कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. In air it is marginally less, therefore we take it as same. In water it is 2.25 into 10⁸ meter per second, and in glass it is 2 into 10⁸ meter per second. So this is very important point and you have to note it down. Now speed of light changes from one medium to another. So let's see how it changes. Let's see, this is air and this is water. As you know, air have particles distinguishedly and water have closed particles. So now speed of light here is very fast as the particles are far apart, so there is a distance for light to travel. But as soon as it enters water, the light speed changes, therefore refraction occurs. Now why speed changes? Because these molecules are very close and they affect the movement of light. So therefore the speed of light changes from one medium to another. Second point is clear. Now we will look for the third point. Light travels from one point to another in a straight line, which is known as rectilinear propagation of light. ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. The light gets reflected when it falls on polished surface like mirror. Now we are going to see why it happens. So let's see why light reflects. Now we are going to see it. For example, this is the surface, polished surface, let's say. It has atoms. Atoms contain electron. And you know that light contains photons that are having a positive charge. Now these electron at the moment oscillates from here to there, and the photon coming from the light interact with it, and some part of light get reflected, and due to the change in speed some part gets pierced into the object and gets refracted. Why? Frequency of light remains unchanged because of the source of light emits the light, and that emission per second is what is we called as frequency. Therefore the frequency of light remains same because the source is never changing for a medium if we consider light ever going. So this is basically, I have completed all the characteristics of light and nature of light, and this will be pretty clear to you, I am sure. Now let's move on to the basic definitions. Mediums. Now let's say the light is coming. Light is coming. Now it will interact in a medium. It will travel in a medium. It will refract from any medium, and it will reflect also from any medium. So we must be having knowledge of mediums. Here is transparent medium, translucent medium and opaque medium. I know this you are studying from first class. ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पूरी पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट जिसमें थोड़ी पार्शियली रिफ्लेक्ट करे, पार्शियली पास हो जाए,
एंड ओपेक जिसमें से लाइट पास ही ना हो पाए, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें सॉलिड दिखता है, मतलब हम उसके पार नहीं देख सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट मीडियम. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ रे. ओके, सो व्हाट इज अ रे वी आर गोइंग टू सी. I have explained you it earlier also. So here it is given how it is represented with an arrowhead. Now ray की बात कर रहे हैं अपन. तो अब देखो, मैंने आपको रे के बारे में बता चुका है. अब यहाँ पे एक नई चीज जो इंट्रोड्यूस की है इन्होंने, होमोजेनस मीडियम. यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. देखो, होमोजेनस मीडियम और हेट्रोजेनस मीडियम आप पढ़ चुके हो. हेट्रोजेनस मतलब कुछ डिस्टर्बेंस है, बट होमोजेनस मीन्स देयर इज नो डिस्टर्बेंस. सो रे एक होमोजेनस मीडियम में आराम से ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. एंड इफ इट ट्रेवल्स इन हेट्रोजेनस मीडियम, तो ये पार्टिकल से टकरा के देन इट विल नॉट रिमेन अ रे, क्योंकि इसका सोर्स चेंज हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने होमोजेनस मीडियम मेंशन किया है. नाउ लेट्स पीप इनटू द नेक्स्ट पेज. नाउ दिस इज ए वेरी गुड नोट हियर गिवन. A single ray cannot be isolated from a source of light. So, let's consider it as a beam of light. हम कभी भी सिंगल रे को स्टडी के लिए आइसोलेट नहीं कर सकते, यही इसका कहना है. नाउ मूविंग ऑन टू बीम. तो अपन पैरेलल बीम का देख रहे हैं. पैरेलल बीम जो बिल्कुल ऐसे हो जिनमें सेम डिस्टेंस हो और जो कभी मीट ना कर सके. डाइवर्जेंट बीम हमें सूरज चाचू देते हैं. एक पॉइंट सोर्स है और हर जगह से डाइवर्ज हो रही है बीम, डाइवर्ज. और अब कन्वर्जेंट बीम की बात कर लेते हैं. कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? मान लो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर आई, पार नहीं कर पाई, अब्सॉर्ब कर ली इसने. दूसरी लाइट आई, तीसरी लाइट आई, तो लाइट का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है. इधर कोई ओरिजिनेशन नहीं हो रहा है, बट एंड हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट. आर यू क्लियर अबाउट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल? डाइवर्जेंट सूरज चाचू, पैरेलल सेम, कभी नहीं दोस्ती करेंगी, हमेशा झगड़े में चलेगी. कन्वर्जेंट अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगी सारी लाइट को, लाइट का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा कन्वर्जेंट में जाके. अब ऑब्जेक्ट दो काइंड्स के होते हैं. ये यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है. सो वी विल कंसिडर दिस एज ऑब्जेक्ट टॉपिक. अब यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने कंफ्यूज होकर लिखा है, बट वी कैन सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन मिरर. नहीं, हम वर्चुअल इमेज देखते हैं मिरर में. हम वर्चुअल इमेज देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं देखते. ऑब्जेक्ट और इमेज में बहुत फर्क है बच्चा. नाउ रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. रियल ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमेशा हमें डाइवर्जिंग लाइट्स देगा. वो हमारी आईज उसको रिसीव कर पाएगी, ऐसी डाइवर्जिंग लाइट देगा. अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये आईज कम मसली ज़्यादा लग रही है, बट कोई नहीं, चलता है. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो इधर दे रहा है. आई विल क्लियर इट एंड देन देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है? सारी लाइट को अंदर ऑब्जर्व कर रहा है. भाई वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो हमें कभी दिख ही नहीं सकता, यही नोट इधर दे रखा है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम कभी नहीं देख सकते क्योंकि सारी लाइट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है. ये अपनी लाइट्स दे नहीं रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हमें हमेशा देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए डाइवर्जिंग लाइट्स जो होती है अपनी आंखों में रिसीव करना होता है लाइट को. अंडरस्टैंड? तो नाउ लेट्स स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. When a beam of light incident in a polished interface and is sent back in the same medium, this phenomena is called as reflection of light. This is the surface. ये अपना डायग्राम बहुत अच्छा है, बचपन से पढ़ते आए हैं भाई. इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये MM1 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा. नॉर्मल जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, वो अपन का नॉर्मल हो गया. फिर अपन आगे चलते हैं इंसिडेंट रे पे. चलो यार, इसी से बता रही हूँ मैं. इंसिडेंट रे, जो रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होने के लिए तैयार है. रिफ्लेक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे टकरा के वापस आ गई रिफ्लेक्टेड रे.
एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे नॉर्मल को याद नहीं रखते, ऐसे एग्जाम में चल जाते हैं, अब नॉर्मल से आ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कंफ्यूजन ये होता है कि इंसिडेंट रे के साथ तो एंगल है, अब ये सरफेस के साथ में या फिर नॉर्मल के साथ, तो हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दिस इज एंगल आई। एंड सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी। एक्चुअली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं कभी कभार वर्ड्स इंटरचेंजिंगली यूज कर देती हूँ, बट इट इज रिफ्लेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड, भावनाओं को समझो। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जिस प्लेन में ये सब हो रहा है, अभी आप लॉ पढ़ोगे, ये एक ही प्लेन में हो रहा है। अगर दो प्लेन मतलब 3D में आ जाता है वो, पर अभी एक ही प्लेन में हो रहा है, इसीलिए प्लेन ऑफ इंसिडेंस इज वेयर द incident ray is striking, and plane of reflection is that plane only where the reflected ray is back. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्यू टू बोर्ड में हर बार इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, हमेशा क्वेश्चन आता है, प्लीज गिव द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन एट लीस्ट 2। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन भाई बढ़िया है, चीज़ें साफ साफ चल रही है, पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल ही जाएगी, पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल ही जाएगी। पर इररेगुलर में वो चढ़ गया है इंसान, है ना। पैरेलल आए चाहे कुछ भी आए, अपन भेजेंगे कैसे? अपन भेजेंगे उसे इररेगुलर। कोई बंदा प्यार से बात करे या चिढ़ के बात करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे गंदा ही रिप्लाई देंगे। तो ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल, स्टील शीट, मिरर, 2 एग्जाम्पल मैंने लिख चुके हैं। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के रफ पेज और स्टोन और रफ पेज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, और रफ पेज तो मैंने सर्कल कर ही दिया है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, नाम ले सर जी का और हाजिर। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम और नॉर्मल जो है वो हमेशा सेम प्लेन पे ही रहेंगे, और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये अपन बहुत छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, तो हमें ये मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। Now let's see the note. The laws of reflection are valid for any smooth reflecting surface irrespective of geometry. यहाँ का मतलब है ज्योमेट्री कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज्योमेट्री सर्कल ही क्यों ना हो, पर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा, पर होगा कोई ज्योमेट्री का वो नहीं है। रिफ्लेक्शन के लॉज हर जगह के लिए सेम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूविंग फर्दर। प्लेन मिरर, हाईली पॉलिश सरफेस, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आप जानते ही हो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नाउ वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने अंदर लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें वो दिख नहीं पाता। पर वर्चुअल इमेज एपेरेंटली, जैसे ये है और एक ये लाइट है, ऐसे आई थी ये, और ये ऐसे आई थी। अब इन दोनों का मिलना, एपेरेंटली मिलना, मुझको एक इमेज देगा जो वर्चुअल होगी और जो मुझे दिखेगी, क्योंकि ये एपेरेंटली मिल रहे हैं, बट इसमें तो कुछ मीटिंग ही नहीं हो रही है, तो पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अलग चीज़ हुई, वर्चुअल इमेज अलग चीज़ हुई, दोनों को खिचड़ी नहीं बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर देख लेते हैं। द इमेज इज वर्चुअल इमेज ऑलवेज, हमेशा आपको ये याद रखना है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कभी इमेज ना तो उल्टी होगी और कभी इमेज रियल भी नहीं होएगी, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। ये बात क्लियर है? इमेज एंड प्लेन मिरर लाइज एज फार एज बिहाइंड। अब एज फार, ये जो u डिस्टेंस है
वो इधर भी u है और इधर भी u है, तो हमेशा सेम डिस्टेंस पे ही रहेगी एज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो विद रिस्पेक्ट टू जो वर्ड है ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी आपको विद रिस्पेक्ट टू मिरर देगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देगा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इमेजेस ऑफ सेम साइज, ये बात बिल्कुल पक्की है कि इमेज जो है बिल्कुल सेम साइज बनेगी किसमें, प्लेन मिरर में, क्योंकि कोई कर्व्स नहीं है, कोई डायमेंशंस नहीं है, सीधे लाइन जाएगी, सीधे रे वापस आएगी, तो हमेशा सेम साइज रहेगा। तो हमेशा मैग्निफिकेशन बोलो क्या रहेगा, एज पॉज, अभी मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा नहीं है तो वहाँ याद रखना, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज़ 1। वाई, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आपको याद रखना है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, व्हाट डज इट मीन, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन को लेटरली इन्वर्जन लिख दिया गया है यहाँ पे। आपने नोटिस करा होगा, आप अपना राइट हैंड उठाते हैं और उस मिरर में जो है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, जो भी इमेज फॉर्म होता है, तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। और आज ही आप अपने, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो मिरर के सामने जाके नोटिस कीजिएगा। अब अपन देखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं, रियल इमेज तब होता है जब रियल इंटरसेक्शन होता है किसी भी रे का, और अगर अपेरेंट इंटरसेक्शन हुआ तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ह्यूमन आई को रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, क्योंकि रेज डाइवर्जिंग होती है, और इसीलिए हम लोग रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज दोनों को देख पाते हैं, इसलिए हम डिफरेंस नहीं पता लगा पाते, और डिफरेंस पता लगाने के लिए एक स्क्रीन ही चाहिए होगी। ओके, स्क्रीन नीडेड। Now what is the difference between real image and virtual image? Can be obtained on screen, cannot be obtained on screen. Actual meeting of light, apparent meeting of light. Real image is inverted. Now this is very good point, and this point you should remember. In case of mirror, real image is formed in front of mirror, and in case of lens it is formed on other side of lens. But virtual image in case of mirror is formed behind the mirror and in lens at the same side. मतलब आपको मैं समझाती हूँ, लेंस और मिरर से, मिरर अभी हम पढ़ेंगे, लेंस भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी, एंड फिर मैं आपको वहाँ पे आके फिर ये एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो जो इमेज फॉर्म होगी, देखो डिस्टेंस सेम रहेगा, इरेक्ट और वर्चुअल होगी, लेटरल इन्वर्जन रहेगा, सेम साइज रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। ओके, सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये शायद एग्जाम में पूछ ले, कम चांसेस है, बट फिर भी अपन याद रख ले तो क्या जाता है, इतने अच्छे से पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए। अब देखो, जब दो प्लेन मिरर एक एंगल थीटा पे इंक्लाइन होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इक्वल टू n इज an even integer then the number of images formed is n-1 for all position of the object। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं इसके, मैं पहले आपको सब तीनों रीड करके बताती हूँ। And if it is an odd number, then the number of images formed is n. If the object does not lie in the plane which bisects the angle between mirror. If the object lies on the plane, then the which bisects between the mirror, then for example, theta is equals to 72 degree 5. If the object lies asymmetrically, then the number of images is 5. But if it occurs symmetrically, then 4. Now let's start it. I will explain you. देख, अपन का जनरल फॉर्मूला क्या है, कोई भी थीटा हो, अपन को ये थीटा मिल गया, जल्दी से इस थीटा को 360 डिग्री अपॉन थीटा में पुट कर देना है। लेट सपोज इट इज 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री पुट किया इसके जगह, तो मैं यहाँ पे 6 मिला मुझे n, ये जो है इसकी वैल्यू n होगी। अब देखिए, जो ये 6 मुझे मिला है n का, अब मैं इसे कंडीशंस पे रखूंगी। जैसे ये 6 मुझे अभी मिला है वो इवन है, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है मिरर के रिस्पेक्ट में,
कहीं भी रखा हुआ है, नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, नंबर ऑफ इमेज n-1 होगी, दैट इज 5 इमेजेस बनेगी इस केस में। बट लेट्स से कि ऑड आता है, ये अपन का n जो है वो इवन नहीं ऑड आता है, तो हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं। कौन से दो केसेस अराइज होते हैं भाई, देखते हैं भाई। अपन के पास दो केसेस क्या अराइज होते हैं, मैं बताती हूँ। ये जो है एक लाइन बीच में से जा रही है, ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों की। अगर इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई अपना वो रखा है ऑब्जेक्ट, तो उस पोजीशन को अपन सिमेट्रिकल पोजीशन कहते हैं, सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन। और अगर इसके यहाँ नहीं रखा है और यहाँ रखा है तो उसे एसिमेट्रिकल पोजीशन कहते हैं। जब हमारे पास ऑड का केस होता है तब हमारे पास यही दो चीज अराइज होती है। कौन सी दो चीज, कि अगर सिमेट्री में लाई किया तो वही अपन का इवन वाला n-1 दैट इज इमेज विल बी समथिंग विच इज, इफ जो अपन का n वैल्यू आएगा उससे -1 अगर सिमेट्रिकली अपना ये लाई कर रहा है। तो अगर असिमेट्रिकली लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई करना है, और अपन का ऑड आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। जो अपन की n वैल्यू है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। आप एक बार रीड करोगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, इट इज वेरी मच ईजी। अपन ये वाला देख लेते हैं कि फ्रैक्शन हो, जब इसकी वैल्यू अपन की फ्रैक्शन आए तो घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4.5 आया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 4 ही होंगी। जो भी डेसिमल आया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, डेसिमल में कुछ भी हो कोई बात नहीं, अपन की इमेज जो है वो इंटीग्रल पार्ट बनेगी। ओके, थैंक यू, डन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे।